Hello everyone, so welcome back to my channel. So in this video we will cover left section C part of our sample paper of accountancy class 11th. So if you want to see part 1 of my accountancy sample paper, so I'm providing the link in the description box so you can watch from that. And if you want to solve this sample paper by yourself first, I'm providing you link in the description box. By that link you will get PDF of these questions so you can solve it by yourself. Now let's start with the solution of section number C. So question number 51 to 52 are based on the given text. Read the text carefully and answer the following. So basically section C में हमारे पास केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं जो कि इस पैराग्राफ को पढ़ के हम 51 एंड 52 क्वेश्चन का आंसर देंगे एंड जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उसको हम देख के 53, 54 एंड 55 क्वेश्चंस का आंसर देंगे. So let's start. Let's read this paragraph first. Dev is the owner of a trading firm with a capital of 25,000. During this year 2021, he bought goods at the list price of 1 lakh from Ravi, less 20% trade discount and 2% cash discount, and paid 40% by check. He sold goods to Preeti at a list price of 2 lakhs, less 20% trade discount and 2% cash discount, and she paid 50% by check. He also sold goods to Tanu for rupees 40,000, allowing her a trade discount of 5% and cash discount of 10%. She paid 1/4 of the amount in cash at the time of purchase. He received cash from Jaya for a bad debt written off last year amounting to rupees 400. सो इसमें हम किसी देव कोई ओनर की बात कर रहे हैं जिसने 25,000 अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उसकी डेली की सेल परचेज की बात हो रही है कि उसने एक रानी को गुड्स सेल की, इसको सेल की, उसको सेल की. तो बस ये बातें हो रही हैं. हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज देव गिव कैश डिस्काउंट टू हिज कस्टमर? सो टू एनकरेज क्विक पेमेंट, नन ऑफ दीज, बिकॉज ही सेल्स गुड्स एज वेरी हाई प्राइस. तो ये तो रीज़न हो ही नहीं सकता क्योंकि वो गुड्स को हाई प्राइस पे तो सेल नहीं करता था. टू मेक सम प्रॉफिट ऑफ गुड्स इफ गुड्स आर सोल्ड एट अ कैटलॉग प्राइस. तो अगर वो कैश डिस्काउंट भी दे तो उसको इतना बेनिफिट तो नहीं होता गुड्स में. तो इसका आंसर आएगा टू एनकरेज क्विक पेमेंट. बिकॉज इफ वी सी इन द पैराग्राफ, उसने जिन जिन को कैश डिस्काउंट दिया सबने अपनी अपनी 50% अमाउंट पे कर दी, किसी ने 1/4 ऑफ द अमाउंट पे कर दी. तो सारे क्विक पेमेंट कर रहे थे ड्यू टू सम कैश डिस्काउंट. तो उसका यही मोटिव था कैश डिस्काउंट लाने का कि टू एनकरेज क्विक पेमेंट. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द ट्रेड डिस्काउंट डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट? कि ट्रेड डिस्काउंट, हाउ इज ट्रेड डिस्काउंट डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट? सो पढ़ते हैं पहले दोनों पॉइंट्स को. Trade discount is allowed when the goods are purchased in a specified quantity, whereas cash discount is allowed when payment is made on or before a specified date. या both are true कि trade discount हमें तभी मिलता है अगर हम कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी बाई किया. अब हम किसी दुकान से एक पेन ले आए तो हमें उस पर इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा. अगर हम इकट्ठा कुछ बंडल ले आए, 100 पेन्स ले आए, तो हमें उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है. एंड कैश डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम पेमेंट एट द टाइम कर दें. ठीक है. So trade discount is not recorded separately at the book of account, whereas cash discount is separately recorded. So हम cash discount record करते हैं, trade discount हम कभी भी record नहीं करते. So now let's see options. So which of the following is true? Both first and second are true. So C option is correct. So now let's see next case based study question. So question number 53 to 55 are based on the given text. Read the text carefully and answer the questions. So जैसे हमने पिछले में पहले क्वेश्चन पैराग्राफ रीड किया था और क्वेश्चंस को आंसर किया था, इसमें भी हमें वही करना है. इसमें हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है. On 31st December 2021, the cash book of Mittal Bros showed a credit balance of इतने 6,920. There is a stark difference in the balance as per passbook. A careful scrutiny points out that there was a debt by bank for 200 on account of interest on overdraft and rupees 50 on account of charges for collecting bills. So, check drawn but not enchased before 31st December 2021 were for rupees 4,000. The bank has collected interest and has credited rupees 600 in the passbook. A bill receivable for rupees 700
previously discounted with the bank has been dishonored and debited in the passbook. Checks paid into bank but not collected and credited before 31st December 2021 amounted to 6,000. So इसमें हम कोई मित्तल ब्रॉस की बात कर रहे हैं. उनकी कोई उसने कैश बुक बनाई थी, तो कैश बुक और बैंक बुक में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, कैश बुक और पासबुक में कोई फ़र्क आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है. तो ये उनकी सारी हमें बताई हुई है, क्रेडिट परचेज सेल्स वगैरह सब कुछ बताया हुआ और सबको असाइन करके बताया हुआ, चेक्स ड्रॉन वगैरह. तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए कि पासबुक कैश बुक में डिफरेंस आए, तो ये सब किसके क्वेश्चंस होते हैं? BRS की, मीन्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ये सब. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक रिफ्लेक्ट्स. सो फेवरेबल बैलेंस तो नहीं हो सकता, नील बैलेंस भी नहीं हो सकता. फेवरेबल बैलेंस तब होता है जब कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस हो. सो इसका आंसर क्या होगा? ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मीन्स एक तब कंडीशन आती है जब हमारे लोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे एसेट से, हमारे एक्सपेंसेस से हमारे लोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट. सो जब भी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस हो तब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट कंडीशन. So now next question is credit balance of a bank account as per the cash book essentially means. तो ये पिछले वाला क्वेश्चन के जैसे है कि ओवरड्राफ्ट. फिर इन्होंने ओवरड्राफ्ट को आगे एक्सप्लेन करने के लिए कहा है. तो मैंने अभी अब आपको बताया कि ओवरड्राफ्ट तब होता है कि जब हमारे बैंक लोन्स बढ़ जाते हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे लोन्स लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं. तो ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. बैंक अकाउंट बिकम्स नेगेटिव and the business in effect have borrowed from the bank. So yeah, the first option is correct कि हमारे जो बैंक बैलेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है कि बिजनेस इन इफेक्ट हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक, कि बैंक से हमने लोन्स लिए हैं. सो देयर इज अ हाई पॉजिटिव बैलेंस. पॉजिटिव तो तब होता है जब डेबिट बैलेंस होता है. बिजनेस हैज पेड ऑल इट्स बैंक लोन्स. नहीं, इसमें हमारी वो कंडीशन जो होती है कि हमने बहुत ज़्यादा लोन्स लिए हैं. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज while preparing the bank reconciliation statement, bills receivable for rupees 700 previously discounted with the bank now dishonored will. So पहले पढ़ते केस स्टडी में ये क्या था. सो उन्होंने कहा है a bill receivable for 700 previously discounted with the bank has been dishonored and debited in the passbook. तो पहले जो बिल रिसीवेबल हमने 700 का प्रीवियसली पहले डिस्काउंटेड करवाया था, अब वो डिसऑनर हो गया है और हमने पहले डेबिट किया था उसको पासबुक में. तो हम क्या करेंगे? अब डिसऑनर हो गए तो उल्टा कर देंगे, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे. सो वो पासबुक में डेबिट हुआ था तो हम क्या करेंगे? कैश बुक में उसको क्रेडिट कर देंगे. उल्टा होता है हमेशा पासबुक और कैश बुक का. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इंक्रीज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आई होप सो ईच एंड एवरी पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल. सो हमने ये सैम्पल पेपर 2 पार्ट्स में कवर किया. इफ़ यू वांट टू सी पार्ट 1, आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर मोर डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.